will get an opportunity. Thank you very much. Question over Dr. Ami Agnik. First question. Deputy Chairman. Statement is read. Yes. Statement is read. First supplementary. Sir, I have gone through the reply given by the Honorable Minister, but I would like to know that India is a party to this UNFCCC as well as the Paris Agreement. But to achieve the targeted carbon sink of 2.5 to 3 million carbon dioxide equivalent sink by 2030, India will need to more than double its current rate of forest cover expansion. What are the plans to increase this tree cover to bring 33% of India's total area under the green cover? Very relevant question you have put, honorable member. Let me tell you that in last 6 years, there is net increase of 15,000 square kilometers of tree cover. More importantly, the pace will increase because last year we have distributed nearly 48,000 crore rupees to the states. And we have put a direction also that, given direction that 80% of this money should go in for afforestation. So afforestation gets a big boost. There is also state level programs of tree plantations all over. At the same time, there is Green India Mission and there is big program of horticulture mission by the Agriculture Ministry. So all these put together, I am very sure that we will achieve it. But beyond that, our Prime Minister has also declared that we will restore 25 million hectares of 26 million hectares of land in 10 years and from degraded land to good land, and that also creates carbon sink for us. Thank you. Second supplementary, madam. Sir, I would like to know whether the government has conducted any detailed risk assessment how climate change is affecting each and every part of our country and what kinds of adaptation measures will be required after this assessment is done. Thank you. Yes, we have been continuously observing what changes are happening. And as in the answer itself, I have said that over the period of 1 century, what we have observed is that 5 states of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Meghalaya and Nagaland, significant decreasing trend in southwest monsoon. See, for the total precipitation during Indian summer monsoon has remained largely stable over a period of 1901 to 2019. So, over nearly 120 years, that precipitation has not changed, but there is certain definite areas which have suffered, and Himachal and Arunachal have also seen significant decrease. There is, at the same time, there is Saurashtra, Kutch, southeastern parts of Rajasthan, northern parts of Tamil Nadu, northern parts of Andhra Pradesh, adjoining areas of southwest Odisha, many parts of Chhattisgarh, southwest Madhya Pradesh, West Bengal, Manipur, Mizoram, Konkan, and Goa and Uttarakhand are seeing more rains. So this kind of climate change impacts come, and we are observing, there are 6 institutes which observe all such changes. But all changes cannot be attributed to only climate change. This also we need to understand, because it's a cyclical, it's a natural phenomenon which operates. धन्यवाद. डॉक्टर भरत कराट जी, डॉक्टर भागवत कराट, प्लीज कृपया आप ब्रीफली सवाल पूछें. मंत्री जी से क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और विदर्भ में वाटर टेबल नीचे जा रहा है और किसानों का पैदावार पे असर हो रहा है और वहाँ सूखों की जैसी परिस्थिति हो रही है. मेरा मंत्री से क्वेश्चन है कि मराठवाड़ा और विदर्भ में जैसी परिस्थिति है, ऐसे देश के कौन कौन से प्रदेश में है और इन सब से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है?
जो साउथ वेस्ट मानसून में जो बदलाव आया है उसका एक वर्णन किया, लेकिन साथ में ये भी बताया कि बारिश में या पूरे हवा की स्थिति में जो बदलाव होता है, हर बदलाव को क्लाइमेट चेंज से रिलेट नहीं किया जा सकता। और हमें ये समझना चाहिए कि मराठवाड़ा में या कहीं भी जब वाटर टेबल डाउन जाता है तो सरफेस वाटर कितना है और उसके साथ साथ कितना ग्राउंड वाटर निकलता है बाहर और कितना यूज होता है, ये भी उसको मैटर करता है। इसीलिए अनेक राज्य सरकारों ने पानी के निष्पादन पर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके निष्पादन पर प्रतिबंध लगाए हैं। धन्यवाद। माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके रिटर्न स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ भी रेनफॉल बढ़ रहा है और अनसीजनल हो रहा है, सौराष्ट्र और कच्छ का जिक्र है, पर अनसीजनल रेन भी बढ़ रहा है और जो भी दरिया किनारा वहाँ का है वहाँ पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। क्या ये उनकी वजह से अनसीजनल रेनफॉल तो नहीं हो रहा? इसका कोई आपने असेसमेंट करवाया है या नहीं? और उत्तराखंड में भी जो घटना घटी, पार्टी इन पावर के एक मंत्री रह चुके पुराने आपके लीडर ने भी ट्वीट किया है कि ये उसी वजह से हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड में जो मना किया गया था वैसे पावर स्टेशन वहां लगाए गए हैं। तो इन दोनों से क्लाइमेट चेंज के साथ आप इसको कैसे? धन्यवाद। धन्यवाद। शक्ति सिंह जी, ये मुद्दा क्लाइमेट चेंज का केवल नहीं है, हमें समझना चाहिए। और दूसरा एक प्रश्न है जिसमें चमोली दुर्घटना के संदर्भ में चर्चा करेंगे तब आएगा ही वो मुद्दा, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें पोल्यूशन के कारण केवल बारिश अनसीजनल हो रही है ऐसा संबंध जोड़ना साइंटिफिक नहीं होगा। श्रीमती जया बच्चन जी। से मैं ये पूछना चाहूंगी कि वेयर डज इंडिया स्टैंड? The issue is India is the only G20 country which is implementing the Paris commitments given through our nationally determined contributions, be it renewable energy, be it reducing the intensity, as well as creating more forest area. On all these three commitments, we are much ahead of many other countries. सर, मेरा ये सवाल का जवाब नहीं है। तो आप सवाल हो चुका है, आप फिर आगे लेटेस्ट जवाब नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। ठीक, उसके प्रोसीजर है मैडम, फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 197 श्री ब्रिजलाल जी। माननीय ब्रिजलाल जी उपस्थित। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी बहाल हुई है और हम लोगों ने एक क्रिकेट मैच देखा था कभी वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, जिसमें उस समय हमारी टीम पर पत्थर फेंके गए थे, लेकिन इस समय वातावरण अच्छा है। तो क्या सरकार बीसीसीआई को सजेशन देना चाहेगी कि वहाँ क्रिकेट मैच हो, जिसमें कश्मीर जम्मू कश्मीर के युवाओं में क्रिकेट के प्रति जो पहले से रुचि है उसको बढ़ावा मिले? लेकिन इस क्षेत्र के कई खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जो हमारी भारतीय टीम में भी शामिल हुए हैं। धन्यवाद। माननीय मंत्री। अध्यक्ष जी, जो एक क्रिकेट पर्टिकुलर संबंधित जो सवाल पूछा है, जो बीसीसीआई है जो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं देश भर में, वो हम लोग डायरेक्टली उनको कंट्रोल नहीं करते हैं। वो जितना भी क्रिकेट प्रमोशन करने के लिए वहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, हम उसको एनकरेज जरूर करेंगे। हमारा प्राथमिकता जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, जो ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में खेला जाता है, उसको लेकर के जम्मू कश्मीर में बहुत ही संभावनाएं युवाओं में जो हमने पाया है उसको आगे करने के लिए तमाम कार्यक्रम उठाए गए हैं और कुछ जवाब में हमने डिटेल दिए हैं, और भी चाहिए तो पूरा डिटेल्स हम आपको दे सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य तारीफ करेंगे जितना कदम हमने पिछले 2 सालों में उठाए हैं। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय ब्रिजलाल जी। आपने जवाब दिया, मैंने सवाल का जवाब पढ़े हैं।
वहाँ काफ़ी खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेह में एक बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है, जो अभी 24 बटालियन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के कैंपस में आइस हॉकी के लिए परियोजना चल रही है। ये खेल ऐसा है जो लद्दाख क्षेत्र में बहुत अच्छा किया जा सकता है। इसको क्या बढ़ावा देने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे? धन्यवाद। सर, जैसे मैंने पहले कहा है, पिछले 2 सालों में जो कदम उठाए उससे पहले भी, लेकिन विशेष करके पिछले 2 सालों में पूरे लद्दाख क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में जितने भी कदम उठाए हैं, खास करके विंटर स्पोर्ट्स को लेकर के। अभी मैं खुद जा करके ज़ंस्कार जाके आया। पहली बार वहाँ विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ और पूरा देश ही नहीं, दुनिया भर में इसका मैसेज गया है। और पिछले साल लद्दाख में आइस हॉकी और बाकी विंटर स्पोर्ट्स का हमने आयोजन कराया और कई इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रोजेक्ट दिया है, वो भी डिटेल कहेंगे तो पूरा लंबा सूची है। लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर और जितना हिल स्टेट्स है, जो विंटर स्पोर्ट्स का संभावना है, उसके लिए पहली बार हिस्टोरिक स्टेप्स उठाया गया है और विंटर गेम्स दूसरे चरण शुरू हो चुके हैं, लद्दाख में भी, जम्मू कश्मीर में भी। तो इसलिए लद्दाख में माननीय सदस्यों को भी, सिर्फ आप ही नहीं, पूरे हाउस के सदन के मेंबर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी जम्मू कश्मीर लद्दाख जाएंगे तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसमें आप ज़रूर जाके देखिए। आपको भी अच्छा लगेगा कि इतने सारे कदम हमने पहल किए हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय सुशील मोदी जी। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि वहाँ पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग है, तो दिस इंस्टीट्यूट इज फेसिंग एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इट इज एट द वर्ज ऑफ क्लोजर। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, नो रेगुलर प्रिंसिपल, द इक्विपमेंट्स आर ओल्ड एंड ऑब्सोलीट। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि गुलमर्ग में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग है, जो एट द वर्ज ऑफ क्लोजर है, उसको पुनर्जीवित करने या उसके सुधार के लिए, और साथ ही साथ मंत्री से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि गुलमर्ग एक अंतर्राष्ट्रीय सेंटर फॉर स्कीइंग के रूप में डेवलप हो सकता है। हम लोग अभी गए थे, हम लोगों ने देखा है, तो माननीय मंत्री से आग्रह करूँगा कि दे शुड थिंक ऑफ डेवलपिंग गुलमर्ग एज एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कीइंग। तो इसके बारे में अगर मंत्री बता सके तो अच्छा रहेगा। सर, ये बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किया गया गुलमर्ग में, मैं वहाँ 2 दिन थे और रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन हमने देखा और जो उत्साह जम्मू कश्मीर के अंदर में जो देखा है, खासकर गुलमर्ग में, ऐसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस तरह का उत्साह से बड़ा कार्यक्रम आज तक हुआ नहीं है। जो इंस्टीट्यूट के बारे में बोला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, मैं खुद उसमें गया, लेकिन वो कल्चर मिनिस्ट्री ने इस्टेब्लिश किया था कई साल पहले। लेकिन उसका जो जितना मैनेजमेंट है और जितने भी जो प्लेयर्स हैं उनसे मैंने बात किया और मैंने वही स्पॉट में घोषणा करके आया कि इस साल से, जो अभी भी बर्फ़ चल रहे हैं, इस साल से नेशनल कैंप, क्योंकि ओलंपिक्स होते हैं विंटर गेम्स, उसका जो नेशनल लेवल कैंप होगा वो वही गुलमर्ग में होगा। उसका सारा फंडिंग हम खेल मंत्रालय से करेंगे। और साथ साथ जो इंस्टीट्यूट का बात किया है, हमने अभी एक निर्णय किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो उसमें विंटर गेम्स का उद्घाटन में भी संबोधन किया था, उसमें भी डिटेल से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसी बात को आगे ले जाते हुए हमने वहाँ वर्ल्ड स्टैंडर्ड, सर वर्ल्ड क्लास विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी गुलमर्ग में इंस्टीट्यूट करने का भी घोषणा किया है। उसका अप्रूवल भी हो चुके हैं और अगले साल से हम इसको अच्छा कंसल्टेंसी के साथ बातचीत करके दुनिया का एक जाने माने विंटर स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट गुलमर्ग में आपको बहुत निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय सैयद जफर इस्लाम। Through you, I would want to, Honorable Minister, to respond to what are the initiatives that have been taken to promote football in Jammu and Kashmir, because I have been there for 3 weeks, and the kind of interest I had seen among the youth, particularly in football, is something which needs to be promoted. And I would want to know from him that what are the initiatives which has been taken by him. Sir, another very important question. We all know that Kashmir has
amazing potential. In football particularly, as Honorable Member was asking, they have performed exceedingly well. The Kashmir team, it's exceedingly progressing well in all level of football. In the National League also, they perform very well. So keeping that in mind and looking at the interest of the Kashmiri youth in football, we have decided to promote football as priority along with all other sports. And I'll be going to Kashmir again in just after this session of Parliament, and we are going to launch some more programs in Kashmir because winter is over and summer is coming. So we will start summer sports, water sports, and particularly football will be one of our main agenda. Thank you. माननीय राकेश सिन्हा जी. उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में जो वातावरण बदला है उसके कारण से लोगों को अवसर मिल रहा है. क्या मंत्री जी वहाँ के जो स्थानीय स्पोर्ट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे? दूसरा, जो बाहर से कोच भेजने की व्यवस्था की जाए, चूँकि स्थानीय लोगों में जो स्पोर्ट्स की भावना है जो दबी रही है, खास करके लद्दाख और लेह में, मुझे लगता है कि यदि सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती है तो उसका लाभ वहाँ के स्थानीय स्पोर्ट्समैन को मिलेगा. धन्यवाद. सर, 2 स्टेट खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने घोषणा किया है. एक श्रीनगर में होगा, एक जम्मू में होगा, और दोनों का डिसिप्लिन्स अलग अलग हैं. पहले से ऑलरेडी इस्टेब्लिश स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर वहाँ पे जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है. उसके अलावा अभी हमने 40 छोटे छोटे सेंटर्स जो ब्लॉक लेवल में होंगे, 40 सेंटर्स का ऑलरेडी खेलो इंडिया के तहत सैंक्शन कर चुका है और हमने घोषणा किया है और 60 टोटल 100, ये रिकॉर्ड है सर, आपका जानकारी के लिए, सदन के लिए भी. 100 small खेलो इंडिया सेंटर्स only in the Union Territory of Jammu and Kashmir has been already declared, and we will also establish some more institute. जैसे मैंने कहा सर, जो अभी मैं अप्रैल में जा रहा हूँ तो उसमें कई जगह मैं विजिट करूँगा, उसमें बहुत सारा जो हमने घोषणा किया है. उसके अलावा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो आर्चरी में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका चेयरमैन है बोर्ड के, उसको भी हमने खेलो इंडिया में एक्रेडिटेशन दे चुके हैं. और साथ साथ में हम वहाँ में और भी युवाओं के लिए और ट्रेनिंग कैंप लगाने के लिए जो भी मदद होगा हम और देंगे. धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर 198 श्री सुजीत कुमार जी. 198. मान मंत्री. First supplementary. Sir, I have only one supplementary. Sir, in his reply, Honorable Minister has mentioned about Khelo India scheme, which is, of course, a good scheme launched in 2016-17 for promoting indigenous and rural sports. But, sir, we all know, apart from these indigenous and rural sports, our youth, particularly tribal youth, have great sporting talent in professional and mainstream sports as well, be it football, be it archery, be it kabaddi, be it athletics. Sir, Sports Authority of India, SAI, was launched in 1984, and its stated goal is talent scouting at micro level and nurturing talent towards excellence. So I would like to know from Honorable Minister, what steps has SAI taken to promote the sporting talent and ecosystem in rural areas for professional sports amongst tribal and rural youths? Thank you. Thank you. Sir, we all know that majority of the talent in India are lying in the rural areas, hilly areas, tribal areas. So our focus of getting the talent from the rural area has been extensively driven in last few years. Of course, we have talents in the cities also, but rural is the focus area. When we target India to be in top 10 by 2028 Los Angeles Olympics, we have to ensure that rural talents are augmented. So under the special the vertical in the Khelo India for the promotion of rural, indigenous and tribal area sports, we have already included 4 indigenous sports and recognized by the Ministry of Sports: Malkham, Kalaripattu, Ghatka and Thangta. Along with that, Yogasan also has been declared as sports from this year. So we are focusing hugely in the rural areas and the results are coming. Right now, 330 athletes from the rural areas in these 4 indigenous games are already obtaining scholarship, and we have already released the money and they are receiving it. On top of that, we will go deeply for searching of the talent in the rural areas,
and I assure the honorable member that if he has anything to suggest to me for any particular rural sports, he can contact me. I am ready to help and work together. धन्यवाद. Second supplementary. Sir, my first supplementary was actually regarding the steps taken by the ministry to promote professional and mainstream sports. I compliment the ministry and honorable minister Please for put your taking, second for supplementary. taking steps to promote indigenous sports like Malkham, yoga. But there is huge sporting talent amongst tribal youth regarding football, kabaddi, athletics, archery, and so on. So my specific query from the honorable minister was regarding the steps taken to promote this professional Thank you. sports. Thank you. Sir, definitely, we cannot forget that Olympic sports has to be the top priority because that is where the international competition takes place. I'm talking about the indigenous games only because we have to promote Indian sports also. But sir, for the Olympic sports, we have majority of these side training centers located in different part of the countries. If you calculate, the tribal and rural areas are the dominant numbers in all the Sports Authority of India's training centers. If I count all the details of the steps taken, it is too long. But I can always share with honorable member because, sir, the steps taken are very extensive. So I was not counting the numbers of the steps taken. Thank you. Dr. Ashok Bajpai ji. माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं परिचालित की गई, ग्रामीण स्तर पर स्टेडियम भी बनाए गए, लेकिन वहां पर कोच या प्रशिक्षक के अभाव में जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं खेल के क्षेत्र में, उनको विकसित होने का पूरा अवसर नहीं मिलता। क्या माननीय मंत्री जी इन ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों के सहयोग से इस तरह की स्टेडियम जिनमें कि कोच भी उपलब्ध हों, स्थानीय प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए खेल के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की सहभागिता बढ़े, इस दिशा में कोई कारगर योजना बनाएंगे, कोई कार्रवाई करेंगे? धन्यवाद। जैसे मैंने पहले भी इस बात को जिक्र किया कि ग्रामीण इलाका में हमारे जो फोकस है वो तो रहेगा। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो सैंक्शन किए हैं खेलो इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के तहत हम देते हैं। राज्य सरकार कई चीज़ में राज्य सरकार भी उसमें कोई सेंटर है वो चलाते हैं और जो हम फंड देते हैं राज्य सरकार इस्तेमाल करते हैं। हम डायरेक्टली उन संस्थाओं को उन केंद्रों को चलाते हैं जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना आप इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देते हैं उसका सही इस्तेमाल कैसे हो, इसके लिए हम जरूर राज्य सरकारों से चर्चा करेंगे। और ख़ास करके जो अनयूटिलाइज्ड फैसिलिटीज़ हैं, पड़े हुए हैं, कोचेस के बारे में जो कहा कि उस फैसिलिटीज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कोचिंग कैसे हो, क्योंकि सर आपको तो जानकारी है, ट्रेनिंग और कोचिंग जब तक नहीं होगा तो ऐसे खेलने के लिए टाइम पास, फिटनेस के लिए, फिट इंडिया के लिए ठीक है, लेकिन आप मेडल के लिए सोचेंगे, कंपटीशन के लिए सोचेंगे तो ट्रेनिंग और कोचिंग हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी हम कई जगह में कोचेस देते हैं, जो सर्टिफाइड कोचेस है वो भी हम प्रदान करते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 199 माननीय श्री के रागेश, एब्सेंट। मिनिस्टर, माननीय मंत्री जी। Answer is laid on the table of the House. धन्यवाद। कोई सप्लीमेंट्री? नो। क्वेश्चन नंबर 200 माननीय चौधरी सुखराम सिंह यादव जी। जवाब सदन के पटल पर रखा है। पहला सप्लीमेंट्री माननीय चौधरी। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा, कभी उत्तराखंड में भीषण आपदा आई और ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा था गवर्नमेंट का, जिसके कारण विद्युत परियोजना का विस्तार हो रहा था और उसमें आज भी पता नहीं लग रहा है, सैकड़ों लोग मर गए, जानकारी भी नहीं है, ना उनके बारे में कोई सूचना आ रही है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में मना भी किया गया था कि ये ऐसे प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे हैं वो स्थान उचित नहीं है और इससे हमें होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूँगा कि भविष्य में जब ऐसी योजनाएं बनाई जाएं तो प्रदेश की पूरी स्वीकृति के साथ साथ, केंद्र की स्वीकृति के साथ साथ, वित्त विशेषज्ञों की स्वीकृति लेने के बाद ही योजनाएं शुरू की जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। धन्यवाद। जनहानि न हो। यह सुझाव भी है। सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। मैं इतना ही कहूँगा कि आज पिछले 6 साल में कोई नई परमिशन
नहीं दी है, 19 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें 2 25 मेगावाट से कम है और 6 रन ऑफ द रिवर्स है। तो इसके कारण ये स्थिति है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए, जैसे अभी जो हादसा हुआ चमोली में, वो ऊपर एक स्खलन होने के कारण ग्लेशियर का, उससे जो पानी और ये आया, वो सब मड और पानी दोनों बहा और एकदम फ्लड आया, उसके कारण हुआ। पावर प्लांट के कारण वो हुआ क्या, अब ये जांच चल रही है, लेकिन पावर प्लांट के कारण नहीं हुआ, ऊपर एक हुआ। लेकिन ग्लेशियर क्यों मेल्ट हुए? क्योंकि 37,000 ग्लेशियर्स हैं, उसमें से कुछ रिसीड कर रहे, कुछ बढ़ रहे। धन्यवाद। माननीय आनंद शर्मा जी। ओ सॉरी, सेकंड सप्लीमेंट, सॉरी। इस आपदा में कितने लोग मारे गए, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। इसी के साथ साथ दूसरा सवाल मेरा ये है कि जल विद्युत परियोजनाओं में लागत और जोखिम तथा पर्यावरण हानि की देखते हुए क्या सरकार जो अन्य ऊर्जा स्रोत हैं उनके बारे में भी कोई योजना बना रही है, ताकि ऐसे स्थानों पे हम जो आज पर्यावरण को शुद्ध रखे और जनहानि भी ना हो, ऐसी परियोजनाएं जो बन रही सौर ऊर्जा परियोजना जैसे है, क्या ऐसी परियोजनाओं पर विचार कर रही है? आपको पता होगा, पिछले जैसे मैंने कहा 6 साल में, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय नया बना, तो जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और एनर्जी विभाग, ये सब मिलकर इकट्ठा बैठकर ये भी तय किया कि कोई भी इस एरिया में, अपर गैंजेस रीजन में कोई नया पावर प्रोजेक्ट अभी हाइडल का मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन देश भर में हाइडल की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक क्लीन पावर है और इसलिए जहाँ प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता और वहाँ परिणाम वैसा नहीं है, तो वहाँ जरूर हाइडल प्रोजेक्ट्स होंगे। माननीय आनंद शर्मा जी। So the matter is a serious one, as the Honorable Minister has in his reply mentioned about the environmental clearances. More important, sir, Himalayas are still young mountains and very fragile, because the Indian plate is continuously pushing against the Eurasian plate. And there have been various instances of not only the glacial activity, seismic activity, but also earthquakes. This has been aggravated by many projects, not only of the hydel projects, but also the highways projects, rail projects, which go through the natural reserves and affect overall the ecology and the habitat. What is noticed, sir? Dynamites are being used by companies, which are leading to not only resulting in huge loss of tree cover. Millions of trees have been lost in the Himalayas in the last few years, across the Himalayas, not only Uttarakhand. But, so my query is, will the minister consider A, banning the use of dynamites in the higher Himalayas completely for any project, B, setting up an expert committee to review each and every project, including those which are threatening the wildlife and going through the games reserves. Thank you. As Anand Sharma ji, honorable member, knows that this whether to allow dynamite to be used is a highly technical subject, which the technical committees of NHAI and other authorities take care of. But what we are interested is that we ensure that forest trees are not cut beyond what was permissible, and before that also they have to plant nearly 10-fold of trees elsewhere in a given landscape. So that they have following up, and that is what our concern is. As far as your second suggestion of expert committee is concerned, already Supreme Court has appointed a special committee for various purposes, and there are so many committees, interministerial
as well as within the ministry. धन्यवाद। माननीय रेवती रमन सिंह जी। मानवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि दो आपदा हो चुकी, एक आपदा केदारनाथ की और दूसरी अभी तपोवन वाली। इसका कारण ये है मानवर कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि ग्लेशियर के फटने से ऐसा हुआ। ग्लेशियर इसलिए फटा माननीय मंत्री जी कि वहाँ का टेम्परेचर कुछ और था और नीचे का टेम्परेचर कुछ और, उसकी गर्मी से ग्लेशियर फटा है। सवाल और माननीय ये चेतावनी आपको प्रकृति ने दी है कि आप कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट आप बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसका क्या कारण है? धन्यवाद। नहीं, इसीलिए पहला मुद्दा एकदम सही है कि क्लाइमेट चेंज का जो परिणाम ग्लेशियर्स पर होता है उसका स्टडी अपने देश की 6 प्रमुख संस्थाएं करती है। इसरो से लेकर बाकी सभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर हिमालयन स्टडीज़ मिशन जो चल रहा है उसमें भी यह अध्ययन होता है और उसमें कोई परिणाम पाए जाते हैं। इसीलिए तो रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर्स ये होता है, स्खलन होता है, ये एक तरह से नेचुरल फिनोमिना भी है और क्लाइमेट चेंज से एग्रेवेट होने वाला इशू भी है। लेकिन आपने जो कहा, मैंने फिर कहना चाहता हूँ कि अपर गंगा रीजस में जो पहले से सैंक्शन प्रोजेक्ट्स है उसके सिवा किसी भी नए प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं दी है, नहीं देंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 201 ऑनरेबल एम शनमुगम जी। माननीय मंत्री जी, प्लीज पुट फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. I would like to know from the Honorable Minister what efforts have been made in various international forums, including G20, to ensure that green technologies and finances are made available to developing the countries, including India, to collectively meet the challenges of the climate crisis. Member is absolutely right that this is not an area-specific problem, but the problem of the globe, and there we need common efforts. It is not only one country doing something and some countries doing nothing. That won't solve the problem. And therefore, we have already emphasizing that the finance which was promised in 2009, that is $100 billion per year for countries developing the world to adapt to the situation and to take on mitigation actions. So this $100 billion means today more than $1 trillion, and finance is not on the table. It is not coming the way it should have come. And therefore, in my all recent talks this year with all concerned authorities, plus also with many ministers, counterparts, we have said that finance and technology support is very basic to this whole arrangement of mitigating climate change and making provision for adaptation. Thank you. Second supplementary. My second supplementary, one of the commitments in the Paris Climate Agreement is to increase the generation of renewable energy. I would like to know what efforts have been made in this direction to reach the target of 175 gigawatt of renewable energy by next year in the country. Thank you. The world is accepting that India is in leadership position as far as renewable energy is concerned. As you know, in 2014, the total production of solar energy was just 2,000 odd megawatts. Now it is 90,000 megawatts of all renewable energies put together, and solar is spreading all over. More than 14-fold increase in solar production has taken place in last 6 years. More importantly, Prime Minister declared 175 gigawatts target to be achieved by 2022, and we are on course to achieve that. And you will be happy that
Prime Minister has further scaled it up to 450 gigawatts, and world has absolutely accepted India's leadership position in renewable energy. Thank you. Dr. Narendra Jadhav ji. Thank you, sir. The Honorable Minister has given the details of the initiatives taken for pursuing the developed countries to meet their commitments about transfer of funds as well as transfer of patent-free technology to developing countries. Sir, my supplementary question is this: whether there are any domestic initiatives, public or private, to study and innovate such patent-free technology in our country. Thank you. Two different things. One, our mission innovation, and Prime Minister has taken lead in creating that spirit of innovation in all sectors of industries, and therefore we are innovating right from the school age. We have started with Atal Tinkering Lab to hackathons in colleges, and then great challenges in the open, and therefore innovation has, and we have created various infrastructure also in various IITs. The issue is that as far as world is concerned, my always plea has remained that if we are thinking climate change as a disaster, then nobody should profit from disaster. And therefore, they should provide technology support at cost, at affordable cost. One should not profit from it. And even if that affordable cost is available, there will be more technological gaps to be filled, and more technology will be available for having sustainable energy and other efficient mode of industries. Thank you. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी. आज मैं यहाँ पे सुनकर हैरान हूँ कि क्लाइमेट चेंज को लेकर डिनायल किया जा रहा है कि अनसीजनल रेन हो या इंसेसेंट रेन्स हो, वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा नहीं है. तो मैं इस बात से हैरान हूँ, पर मैं एक स्पष्टीकरण मानना चाह रही हूँ. सवाल ही पूछ रही हूँ सर, उसी पे आ रही थी. क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट का असेसमेंट और एक्नॉलेजमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है. हमारा सिविलाइजेशन इतिहास भी बोलता है कि प्रकृति के 5 तत्व होते हैं. मैं आपके माध्यम से बस एनवायरनमेंट मिनिस्टर से पूछना चाहूँगी कि उन पे क्या काम किए गए हैं, और जब हम पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और टारगेट्स मैच करने की बात करते हैं, इन 5 तत्वों में क्या क्या कार्य हुए हैं, उसका मुझे सूची दी जाए. धन्यवाद. ये तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जलवायु परिवर्तन का और जो हो रही घटनाओं का कोई संबंध नहीं, लेकिन मैंने कहा हर चीज़ should not be related to only climate change. यानी हर चीज़ का एक ही कारण climate change ऐसा भी नहीं है. इतना केवल फैक्ट बताने के लिए मैंने कहा. दूसरी बात है कि हमने, जैसे मैंने अभी सोलर एनर्जी का बताया, जैसे अभी रिन्यूएबल एनर्जी का बताया, उसके साथ साथ हमारा रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी, यह हमारा पेरिस का एक टारगेट था. 35% करेंगे. आज तक 26% कर चुके हम. 2030 में अचीव करना है 35. अभी 26% हो गया है, तो हम वी विल बी ओवर अचीविंग आवर टारगेट्स. क्योंकि यहाँ के कॉरपोरेट वर्ल्ड ने भी, मैंने अभी सारे कॉरपोरेट सीईओ से एक बार की कि आप आपके तरफ से क्या कर रहे हो, तो मुझे बहुत तसल्ली हुई कि सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त भी ये सभी कंपनियां अपनी तरफ से कार्बन का उत्सर्जन कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, ग्रीनरी अपने कैंपस में और एरिया में ज़्यादा लगाना, और इस तरह के सभी प्रयास कर रहे, पानी की बचत, बिजली की बचत, ये सब प्रयास करके ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ के लड़ाई में सभी कॉरपोरेट वर्ल्ड भी एक साथ खड़ा है. इसका भी मुझे निश्चित उल्लेख करना चाहिए. धन्यवाद. माननीय जयराम रमेश. Question is very simple and direct. The Honorable Minister has just said that the target was 175 gigawatts and the Prime Minister has increased it to 450, and everybody applauded. My question is very simple. Is it capacity or is it supply? Because the Honorable Minister knows that solar plants will not give you more than 20% of supply. So it's very easy to reach capacity target,
But I would like us to applaud when supply target is actually achieved. So I would like the clarification. Is it capacity or supply? Thank you. Jairam Ramesh ji, direct answer. And the answer is very clear that we have not changed any nomenclature or standard of calculating solar energy targets or solar energy capacities. So it is, as you know, it is not 24 hours, but whatever capacity is generated, that is available, and that is what we have counted, that we will have 40% of our energy capacity mix by 2030. And as I said, we have already achieved that also in advance practically, and we will be going ahead 38%, 38.5% we have achieved as of today. And as the demand will also grow of general energy, our subsequent supply of renewable energy will also grow, and we will be overachieving in what we have decided. And as far as Prime Minister has said, 170 by 2022 and 450 gigawatts, that is 450,000 megawatts by 2030, and we will achieve it. Thank you. Question number 202, DP Vats, माननीय DP Vats. माननीय मंत्री. पहला supplementary. Sabhapati ji, through you, I will like to tell Minister, what is the extent of profit from open auction of coal blocks? And are we having any plan to reduce our dependence on imports? Sir, as far as profit or revenue is concerned, the recent commercial coal mine auction, it generates around 6,656 crores as and when production starts. As we all know, after the allocation of a particular coal block or any mine block for that matter, it will take 2 to 3 years to actually start production. And we have taken so many measures to put it on fast track and bring the production at the earliest. And as far as revenue is concerned, it goes to the state, and approximately around 6,556 crores will be the revenue when it starts the production. And as far as the reduction of the import is concerned, many measures have been taken. Some of the especially coking coal and non-substitutable coal, means where the power is generated only on imported coal, there it may be little difficult, but the target of Modi government is all avoidable import should be stopped by 2024. Thank you. Second supplementary. Sir, my second supplementary is, what are the measures taken by the mining ministry, coal and mining ministry, to preserve the green cover over the mines? Dhanyavad. Sir, many measures have been taken, especially the plantation. After reclamation and the unused land of the Coal India and even the coal mines, many such measures have been taken. And India, as already in the previous question, Prakash ji has, our senior colleague Prakash ji has mentioned about the overall perspective and how renewable energy also are going. And India is the only country among the G20 nations on track to meet the Paris Agreement on climate change. And as far as ministry is concerned, coal ministry is concerned, in all the coal mines where the extract is complete, their plantation is going on a huge way, and the mine water is also purified and supplied wherever it is possible for drinking and wherever it is not possible for the irrigation purpose. And so many such measures have been taken. In a huge number, the plantation is going on, and many such measures have been also been taken. And India's per capita CO2 emission is also, comparatively world, it is quite less. It is 1.9 tons in 2019, and global average is 4.7 tons. So in this way, we are very much concerned about the environment ministry also, and whatever the measures we have taken as far as the environment is concerned, already Honorable
Environment Minister has explained it in detail. धन्यवाद। श्री अमर पटनायक जी, माननीय अमर पटनायक जी। Thank you, sir. Sir, in the previous round of auctions of coal mines before, we found that a number of coal mines operation never took off. There were several structural issues relating to operation of coal mines after the auction. I would like to know from the Honorable Minister very specifically whether these reasons were studied and what measures have been taken to ensure that in the latest round of auctions also some of these mines will start producing as expected. Sir, right now I do not have figures, but some of the mines, they have not started the production. And Ministry of Coal, it is day to day it is monitoring, and we are changing the norms also, so that whatever the auction is not being done, that we are trying to withdraw from them. And because in either it is in coal blocks or mine block, once if central government, if it is either through allotment route or through auction route, if it is given, the majority of the things have to be done in the state government, respective state government. And as far as members come from Odisha, and we are continuously interacting with the many state governments, including Odisha, and I would like to also acknowledge Government of Odisha is giving the very positive suggestion. Accordingly, we are acting. Thank you. श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कोयला परिवहन परियोजना में 1979 में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और विधवाओं के लिए एक योजना बनी थी जो अब तक लगातार सुचारू रूप से चलती चली आई थी। मानवर कोरोना काल में 30 जून 2020 को CIL ने यह कह करके इस योजना को बंद कर दिया कि इससे हमारा भला नहीं है, इसको हम बंद कर दे रहे हैं। माननीय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानकारी लेना चाहती हूँ कि ये CIL के हित में नहीं था, इन्होंने अपने मन से एकाएक फैसला लेते हुए इसको बंद कर दिया। माननीय मैं जानना चाहती हूँ कि आपने तो वापस कर लिया, लेकिन इस फैसले के बंद करने से विधवाओं, पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों के ऊपर जो असर पड़ा है, क्या उससे निजात पाने के लिए उनके लिए क्या सरकार कोई योजना बनाई है? अगर बनाई तो धन्यवाद बताने की कृपा करें। Sir, this is the question is regarding commercial coal mining, and it is out of the ambit of this question. However, I will send the reply to her directly. धन्यवाद। श्री समीर उरांव जी, माननीय समीर उरांव जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। सवाल पूछिए कि वर्ष 2020-21 में कोयले का आयात कम होता दिख रहा है, परंतु दुर्भाग्य है कि 100 वर्षों से अधिक कोयला डिपॉजिट के बावजूद हम आयात कर रहे हैं। सवाल पूछिए महोदय। मैं इसको रोकने के लिए कई नीतियां बनी हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, वो बताएंगे कि झारखंड सरकार ने इस नीतियों का विरोध कर रही है। यदि हाँ, तो यह विदेशों से आयात में कमी या रुकावट होगी? अगर रुकावट होगी, ये जो रुकावटें हो रही है महोदय, राज्य की नीति का महोदय, ये रुकावटें हो रही है, अगर रुकावटें हो रही है तो समीर उरांव जी ठीक करने के लिए समीर उरांव जी स्टेट पॉलिसी पर यहाँ डिस्कस न करें। आप सवाल पूछना है तो कोयले पर सीधे पूछें। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ किस प्रकार से नीतियों का जो विरोध हो रहा है, तो आयात करने में ये रुकावटें हो रही है। धन्यवाद। यदि हो रही है तो इसको ठीक करने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं क्या? स्टेट पॉलिसी प्लीज ये स्टेट पे। Sir, as far as coal production and coal import is concerned, India having the largest reserves of the coal, हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में कोयला है। इतना कोयले होने के बावजूद भी जो हम पावर जनरेशन के लिए कोयला यूज़ करते हैं, थर्मल कोल, उसको भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं।
इसके कारण है देयर वर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस अबाउट द allocation of the mines, whether it is through allocation or through auction route. So that have been eased out. But in recent days, with the consultation with a very deep level consultation with the state governments, Government of India has brought out an auction policy for the commercial mining. The उद्देश्य इतना ही है कि in 1920 we have imported around 250 million tons of coal, and it is worth around 1,70,000 crores. Having so much, I can understand if we can import the crude oil, but importing the coal, according to me, it is a big sin. That's why Government of India has changed the provisions for the allocation and auction. And we have consulted the state government. Even we have consulted the state of Jharkhand also. And initially they appreciated, then they have opposed it, but we are in regular consultation with the state government. We are trying to consult and convince them, because ultimately it is the interest of the state also. Whatever the revenue gets, single naya paisa Government of India doesn't get. Entire revenue goes to the state government. We are trying to convince them, and I hope they will be convinced. And already auction is done, but now since there are this cooperation of the state is needed, we are in regular touch with the state government. Thank you. Question number 203, Sri Anil Baluni ji. माननीय Anil Baluni. Question number 203. Answer is laid on the table of the House. पहला सप्लीमेंट्री. धन्यवाद सभापति जी. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कैंपा फंड का उपयोग गैर वाणिकी कार्यों में ना हो सके, इसके लिए कैंपा गाइडलाइंस में संशोधन पर कोई विचार किया जा रहा है या किया जा सकता है? जैसा मैंने पहले उत्तर में भी कहा था कि ये जैसे हमारे ध्यान में आया कि कैंपा के प्रोसेस एक ऐसी तय की है कि हर राज्य अपना एनुअल प्लान बना के हमारे यहाँ भेजेगा, सामूहिक चर्चा होगी और उसके अनुसार उसको मंजूरी मिलेगी. लेकिन जब ये देखा गया कि गैर वानिकी काम के लिए ज़्यादा पैसा कुछ राज्य बता रहे हैं, तो हमने एक डायरेक्शन सबको भेजा है कि 80% एफॉरेस्टेशन और वाटर एंड फॉडर ऑगमेंटेशन ये उसी का हिस्सा है, उसके लिए यूज़ करना चाहिए. क्योंकि आपको भी पता है कि प्राणी बाहर क्यों आते हैं. जब जंगल में खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तब बाहर आते, मूल टेंडेंसी है. तो इसलिए जंगल में खाना और पानी अच्छी तरह से पैदा हो, वहाँ पेड़ और हरियाली अच्छी रहे, इसके लिए इस बार लाइडर सर्वे, लाइडर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सर्वे करके हर राज्य के एक जंगल को हम पूरा स्टेप बाय स्टेप उसका स्टेप लाइडर सिस्टम से वाटरशेड डेवलपमेंट करेंगे, ताकि वहाँ पानी वही का वही रहे और वो जंगल के काम आए. ये पहला मुद्दा है. और दूसरे गैर वानिकी काम न हो, हमने राज्यों को भी कहा है कि आप बजट कम कैसे करते हो. कैंपा का पैसा आया तो बजट कम कर दिया, बोले आपके पास कैंपा का पैसा है. तो हमने जानकारी मांगी तो 18 राज्यों ने थोड़ा कम किया है बजट और 14 राज्यों ने बढ़ाया है. तो जिन्होंने बढ़ाया उनको मैं बधाई दूंगा, लेकिन जिन्होंने नहीं बढ़ाया उनको ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह से ये उत्तर रास्ता नहीं निकलेगा. इसमें जो बजट फाइनेंस कमीशन ने भी 15वें वित्त आयोग ने भी समझ गया, 15वें वित्त आयोग ने भी 10% वेटेज दिया है और उसका भी ख्याल राज्यों को रखना चाहिए. धन्यवाद. डॉक्टर सेकंड सप्लीमेंट्री. महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कैंपा फंड द्वारा कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार हुआ है, क्या इसकी सख्ती के साथ समीक्षा की जाती है? ये सजेशन भी है और अच्छा ये है, तो हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं. अब हम एक नए तरीके का मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं कि कैंपा के एवज में जहाँ तो ये वन बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स लेकर उसकी आज की स्थिति क्या और हर साल उसमें क्या क्या कैसे बढ़ रहा है जंगल, ये देखा जाएगा और वो पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा. इस स्कीम के लिए हम अभी काम कर रहे हैं. धन्यवाद.
धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान। Chairman, sir, with your permission, I would like to ask Honorable Minister that speaking of afforestation, we spend such a lot of money on planting trees through various schemes, whether it is Campa or any fund. After all, it is the taxpayers' money. But many times these trees don't seem to be visible because many times they are planted where there is no water. Madam. So I want to ask the Minister that is there a mechanism to know how many trees were planted and how many have survived, and will there be an audit where you will place it on public domain, how many trees were planted and how many have survived in various regions? Thank you. Very important question you have raised, madam. And let me assure you that we are creating a mechanism of continuous audit where every year how the plants are growing, how many have survived, all this will be mapped and put on public domain because that is the best audit system we can have. Thank you. माननीय श्रीमती वंदना चौहान जी। The same what Fauzia ji has asked. Thank you. So, thank you very much. Thank you. Sir. Only one question that I would ask, that you will be putting it in public domain. So when is that expected? Because now technology has reached such a level that it can all be put under the GPS. Needs to be in public domain. So when? Thank you. Preparation for this scheme is on, and as soon as it happens, we will declare it. क्वेश्चन नंबर 204 माननीय विश्वमर। इस सवाल के बारे में पत्र आया है माननीय कोयला मंत्री जी का। यह सवाल संबंधित है वित्त विभाग से। इसका जवाब वित्त विभाग के माननीय मंत्री देंगे। पहला सप्लीमेंट सर, रिप्लाईज लेट ऑन द टेबल। हाँ, माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, बताया है कि करीब 35 सरकारी उपक्रमों को जो सरकारी इशूज हैं उनको बेचने के लिए किया गया है। क्योंकि पूरे देश में लोगों को शंका है कि कुछ ही घरानों के लिए जितने प्राइवेट सेक्टर के जो है हमारे सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं, तो मानवर हम ये क्वेश्चन करेंगे कि SC ST OBC के लोग जो काम करते हैं, महिलाएं जो काम करती हैं, तो उनके आरक्षण का क्या होगा जब प्राइवेट में जाएंगे? उनकी मेडिकल सुविधा, उनका PF, उनकी पेंशन का क्या व्यवस्था होगी जब प्राइवेट में जाएंगे? क्या सरकारी की तरह वहाँ भी बहाल रहेगी प्राइवेट में जाने पे? धन्यवाद निशांत, धन्यवाद। माननीय सभापति जी, माननीय सांसद महोदय का प्रश्न गंभीर भी है और जनता से जुड़ा हुआ भी है। और निर्णय जो सरकार ने लिया है वो ये भी तय किया है कि किन किन सेक्टर्स को स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में रखा जाएगा, और उस स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में एटॉमिक एनर्जी हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, या ट्रांसपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन हो, पावर, पेट्रोलियम, कोल, अदर मिनरल्स हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज हो। ये तो सर स्ट्रैटेजिक सेक्टर हो गया, बाकी नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में आएंगे। और जिसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए दिया जाता है या स्ट्रैटेजिक सेल के लिए दिया जाता है, तो सर जो शेयर परचेज एग्रीमेंट होगा उसमें ये तय किया जाएगा कि लोगों का रोजगार ना जाए और उसके अंतर्गत ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना भी है और इस पॉलिसी में भी कहा गया है कि इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगी, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन भी होगा, रोजगार का सृजन भी होगा और इसके कारण एंसिलरी यूनिट्स भी और बढ़ पाएंगे। सर कुल मिलाकर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और जब सर सब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सुविधाएं भी बढ़ेंगी, सुविधाएं कम नहीं होंगी। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। मानो मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 34 उपक्रम बेचने के लिए किया है। 2014 से अब तक कितने सरकारी उपक्रम जो है इन्होंने देश के हित में और बेरोजगारों के हित में बनाया है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके? आप 35 तो बेच रहे हैं, लोग मतलब रेल से लगा के एयर इंडिया तक आप बेच रहे हैं, लेकिन आपने 2014 से अब तक कितने सरकारी उपक्रम बनाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले? कृपया ब्रीफली, और सवाल है ब्रीफली जवाब दीजिए। सर जैसा मैंने पहले कहा कि पॉलिसी बहुत क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। स्ट्रैटेजिक नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, स्ट्रैटेजिक सेक्टर में एक कम से कम तो कंपनी रखनी ही है जो चलानी, जो देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण भी है। और जहां पर लगता है कि
कंपिटिटिव मार्केट के कारण अब ऐसे अवसर है कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो सरकार को धंधे में रहने की आवश्यकता नहीं. गवर्नमेंट डजंट नीड टू बी इन बिजनेस, सर. गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. सो दैट इज व्हाई देयर हैज बीन अ वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी. Thank you. नीति आयोग House, decides on माननीय that. मंत्री जी, House stands adjourned till 2 p.m.